ایک بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا نام زرینہ تھا۔ بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ بہت ہی حسین اور عقل مند تھی۔ جب وہ ذرا بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اسی دوران 2 شہزادوں کے رشتے اس کے لیے آئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کی شادی کس سے کرے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے بھی مشورہ کیا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شاندار تھا اور وہ نہایت نیک ہی عقل مند، بہادر اور خوبصورت بھی تھا۔ دوسرے شہزادے کا نام دلشاد تھا۔ وہ نہ تو نیک تھا، نہ ہی عقل مند اور نہ ہی بہادر تھا۔ اس نے چپکے دل میں سوچ لیا تھا کہ شہزادی زرینہ سے شادی کے بعد کوئی سازش کر کے بادشاہ کے سارے تخت و سلطنت پہ قبضہ کر لے گا۔ چونکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے، اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں شہزادی زرینہ سے بھی اس کی رائے ضرور لے گی۔ وہ جس شہزادے کو پسند کرے گی اسی سے اس کی شادی کروائی جائے گی۔ جب ملکہ نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ساری معلومات بتا کر شہزادی زرینہ سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، امی حضور، آپ نے میری تربیت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر سر جھکانا اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں۔ آپ جہاں بھی کہیں گی اور جس سے بھی کہیں گی میں شادی کر لوں گی۔ ملکہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے شہزادی زرینہ کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور بولی، جیتی رہو میری بیٹی، تمہارے لیے 2 شہزادوں کے رشتے آئے ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل سے تمہیں بتا ہی چکے ہیں۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کسے ہاں کریں اور کسے نہ کریں۔ تم ہی فیصلہ کر کے ہمیں بتاؤ کہ کس سے شادی کرنا پسند کرو گی۔ امی حضور، شادی کے لیے آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، شہزادی زرینہ نے اپنی بات دہرائی۔ ملکہ نے کہا، میں کہہ تو رہی ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ شہزادی نگینہ نے کچھ سوچ کر کہا، تو ٹھیک ہے، میں اس شہزادے سے شادی کروں گی جو میری 3 شرطیں پوری کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ ملکہ نے حیران ہو کے پوچھا۔ شہزادی بولی، میری پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے جس میں آدم خور مگرمچھ رہتا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاول سے بھری پوری دیگ کھائے، اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا گھوڑا لائے اور اس پر سواری کر کے دکھائے۔ شہزادی نگینہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ملکہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، اس کا مطلب ہے تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہو، کیونکہ تمہاری عجیب و غریب شرطیں کوئی بھی پوری نہ کر سکے گا۔ تمہیں پتہ ہی ہے کہ تالاب کا آدم خور مگرمچھ بے شمار انسانوں کو کھا چکا ہے۔ کس میں ہمت ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے؟ پھر کون سا انسان ایک دیگ چاول کھا سکتا ہے؟ شہزادے تو ویسے ہی بہت نرم و نازک ہوتے ہیں، اور سوئے ہوئے گھوڑے پہ بھلا کوئی سواری کر سکتا ہے؟ گھوڑا سوئے گا یا پھر بھاگے گا؟ اس کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ملکہ کو کچھ غصہ سے اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے اس کی لاڈلی بیٹی کی شکایت کی۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ملکہ، آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ نے بھی تو اپنی شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھیں۔ بہت سارے شہزادے ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر انہیں ہم نے پورا کر کے دکھایا تھا نا۔ ملکہ کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگی اور بولنے لگی، امی، میری شادی اپنے بہن کے بیٹے سے کرانا چاہ رہی تھیں اور وہ مجھے بالکل ناپسند تھا، اس لیے میں نے وہ شرائط رکھی تھیں۔ پھر میری شرائط تو ہمت اور جواں مردی والی تھیں۔ ایک آدم خور شیر کو خنجر سے مارنا تھا، جس نے کئی انسانوں کا قتل کیا تھا، اور معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا تھا جنہوں نے غریبوں کا جینا دوبر کر دیا تھا۔
और पहाड़ को काटकर एक नहर निकालकर किसानों की बंजर ज़मीन को सैराब करना था। मुझे फ़ख्र है कि आपने वो तमाम शराइत पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले भी तो थे। लेकिन मलका, कभी कभी हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर हम आपकी शर्तों को पूरा करने से कासिर रहते तो फिर आपसे तो हमारी शादी ही ना हो पाती। मलका ने कहा, क्यों नहीं होती? मैं अपनी शर्तों में तब्दीली कर देती कि आप उन्हें शादी के बाद भी तो पूरा कर सकते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोल ली, पहले मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि शहजादी की शादी किससे करें। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेसरोपा शराइत से बाज आ जाए। इस बारे में आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। हमारी शहजादी चाहती है कि उसका शौहर बहादुर और समझदार होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई ज़रा सी भी अक्ल लड़ाए तो शहजादी की शराइत आसानी से पूरी कर सकता है। हम दोनों शहजादों के सामने शहजादी की ये शराइत रखेंगे। जिसने भी उन्हें पूरा कर दिया उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने एलची भेजकर दोनों शहजादों को बुलवाया। बादशाह ने सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनकी खातिर मेहदारत के लिए ख़ास इंतज़ामात करवाए। जब शाम को बादशाह इन शहजादों से मिला तो उसे शहज़ादा शानदार बहुत पसंद आया। वो उसकी शक्ल व सूरत, वजाहत और किरदार से बहुत मुतासिर हुआ। वो शहज़ादा बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क पे हुकूमत कर रहा था, इसीलिए उनकी रआयत बहुत खुशहाल थी। मलका को भी वो शहज़ादा पसंद आया। दूसरा शहज़ादा जिसका नाम दिलशाद था, दोनों को एक आंख न भाया। बादशाह को महसूस हुआ कि वो एक खुशामदी और चापलूस किस्म का नौजवान है। इस बात से बादशाह ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो नहायत चालाक और अय्यार आदमी होगा। मलका को तो शहज़ादा शानदार इतना अच्छा लगा कि वो शहज़ादी ज़रीना के पास गई और उससे बोली, बेटी तुम अपनी शराइत वापस ले लो और शहज़ादा शानदार से शादी कर लो। ऐसा शौहर किस्मत वालों को ही मिलता है। अगर पहली शर्त के दौरान ही मगरमच्छ उसे खा गया तो बहुत बुरा होगा। शहज़ादी ज़रीना ने अटल लहजे में कहा, अगर मैं अपनी शराइत वापस लेती हूँ तो इसमें मेरी बेइज्जती है। शहज़ादा अगर मेरी शर्तें पूरे करता है तो ठीक है, वरना वो अपने घर वापस जाए। मलका मायूस होकर वापस आ गई। दोनों शहज़ादों की मुलाकात शहज़ादी ज़रीना से करवाई गई। वो उन्हें महल से कोई दूर जंगल में तालाब तक लाई और उनसे कहा कि ये वो तालाब है जिसमें एक आदमखोर और खूंखार मगरमच्छ रहता है। तो आप दोनों में से कौन तैरकर इस तालाब में दिखाएगा? शहज़ादी का ये कहना था कि उसी वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले हुए तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर शहज़ादा दिलशाद खौफज़दा हो गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं तो इस तालाब में हरगिज़ नहीं जाऊंगा। शहज़ादी की दूसरी शराइत भी बहुत सख्त है। देख भर कर चावल तो कोई देव ही खा सकता है। इसके अलावा मैं सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा? उस पर सवारी कैसे करूँगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी है शादी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद शहज़ादा शानदार ने कहा, शहज़ादी साहिबा, कल मैं आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। रात हुई तो उसके साथ आए हुए गुलामों ने तालाब में एक बहुत बड़ा सा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर एक दरिया में छोड़ आए। अगली सुबह मलका बादशाह और शहज़ादी ने देखा कि शहज़ादा मज़े से तालाब में तैरता हुआ फिर रहा है। शहज़ादी ने पूछा कि उस मगरमच्छ का क्या हुआ, वो कहाँ गया? उसे मैंने पकड़कर दरिया में छुड़वा दिया है। आपकी पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर एतराज़ नहीं करेंगी कि मैंने मगरमच्छ को दरिया में क्यों छुड़ाया। आपकी शर्त सिर्फ दरिया में तैरने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। शहज़ादे ने तालाब से बाहर आकर कहा। मलका ने बात हैरानी से सुनी। बादशाह भी मुस्कुरा रहा था। शहज़ादी ने कहा, बिल्कुल ठीक शहज़ादे, आप पहली शर्त जीत चुके हैं। मेरी शर्त ही यही थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएं। मैं आपकी जहानत की कायल हूँ। दोपहर हुई तो शहज़ादी ज़रीना ने कहा, शहज़ादे आप मुझे देख भर कर चावल खाकर कब दिखाएंगे? शहज़ादे ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद ही। ये कहकर शहज़ादा शानदार
खिड़की से बाहर जाकर देखा, वहाँ उसका एक मसाहिब 2 गुलामों के साथ लंबे लंबे कदम उठाता हुआ महल की जानिब आ रहा था। शहज़ादा शानदार बादशाह से इजाज़त लेकर बाहर निकला और अपने मसाहिब से कोई चीज़ लेकर जेब में रख ली और वापस आ गया। इतनी देर में मुलाजमों ने दस्तरखान सजा दिया। वो अपने साथ चावलों की एक बहुत बड़ी देग लेकर आए थे, जिसे उन्होंने दस्तरखान के बीचों बीच रख दिया। देग को देखकर बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आए। क्यों भाई साहबजादे, क्या आप ये खा लेंगे? शहजादे से उसने पूछा। एक देग तो क्या, मैं तो 2 देगे भी खा सकता हूँ। ये कहकर शहजादा शानदार ने अपनी जेब से एक नहायत छोटी सी धात की देग निकाली, जो उसके मुलाजिम बाजार से ख़ास तौर पर बनवा कर लाए थे। उसने उसे चावलों से भरा और शहजादी ज़रीना के सामने पूरी देग चट कर गया। शहजादी साहिबा, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। मैंने देग भरकर चावल खा लिए हैं। उसकी बात सुनकर शहजादी ज़रीना हंस हंस कर लोट पोट हो गई। बादशाह ने मलका से कहा कि बेगम, अब अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो यूँ लग रहा है कि ये शहजादे सोते हुए घोड़े पर भी सवारी करके दिखा देंगे। शाम को बादशाह और मलका और शहजादी नगीना अपने बाग में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक उन्होंने शहजादा शानदार को एक घोड़े के साथ आते हुए देखा। वो करीब आया तो बादशाह हैरत से बोला, शानदार बेटे, ये घोड़ा लिए कहाँ फिर रहे हो? शहजादा शानदार ने बड़े फ़ख्र से बताया, ये घोड़ा नहायत कीमती है, मैं इसे मंडी से ख़रीद कर ला रहा हूँ। इसके मालिक ने मुझे बताया था कि यह हातम ताई के घोड़ों की नस्ल से है। इसका तो मैंने एक बड़ा सा अच्छा नाम भी रख लिया है। घोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत था। शहजादी नगीना को भी बेहद पसंद आया। इसका रंग हल्का कत्थई था और उसकी गर्दन पर बड़ी बड़ी चमकदार अयाल थी। शहजादे, क्या नाम रखा है आपने इसका? शहजादी ने बड़े ताज्जुब से पूछा। शहजादी साहिबा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। चूँकि ये मेरा घोड़ा है तो इसलिए मैं जो भी इसका नाम रखूँ मेरी मर्ज़ी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो सके। ये कहकर शहजादा शानदार रकाब में पाँव डालकर घोड़े पर सवार हो गया और एड़ मारकर उसे दौड़ाता हुआ बाग का एक चक्कर लगाकर दोबारा इन लोगों के पास आ गया। ये सब देखकर मलका और बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। शहजादी नगीना भी मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद वो बोली, अब्बा हजूर, हम चाहते थे कि हमारी शहजादी एक ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। हमने अपनी शर्तें इसलिए रखी थी कि इन्हें पूरा करने वाले की जहानत का इम्तहान हो सके। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल गया है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मलका ने सुख का सांस लिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे।